रिकॉर्ड हो रही है? ठीक है, ओके। Anila, please share my number with Saad, and Saad, can you please text me or WhatsApp me from your number? Sure sir, sure sir. सर आप स्टार्ट करते हैं। All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. We are here to start our topic of climate change and related effects to the human health as well as to the environment. इसमें थोड़ा सा आपके साथ मैं इसकी basics भी share करूंगा, as I got to know that the students or the participants are having background in some other related fields. तो उस हवाले से मैं कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा और उसके बाद फिर हम क्लाइमेट चेंज की तरफ भी जाएंगे. But before that, you must know that there are few groups which are opposing this theory of climate change or fact of climate change, and many groups are supporting this group, this topic, and we have to observe, analyze, and then compare both the arguments, and then we can conclude that either climate change is being happening or not. As far as my introduction is involved, I have graduated from IESC NURSE, and I have been over there as a lab engineer over a period of 3 to 3.5 years as well, and later on I joined UET Texla as lecturer, and currently I am working as lecturer at the same department, which is the Department of Environmental Engineering at University of Engineering and Technology Texla. The core learning objectives of this session will offer the participants to learn about the climate change and few related terminologies and phenomena. For example, they would be able to distinguish climate from weather. What is the difference between climate and weather, because both the terminologies are mixed somehow, and to describe the components of the climate system as well, and then to explain how the components have changed over the time period. Then they would also be able to explain the impacts of climate change on the environment. But before moving towards those objectives, we must make our minds clear that what do we want from this topic and what are the expectations of the participants along with the offered objectives. There must be some expectations of the participants as well. तो उसके लिए फिर आपका पर्सनली आप इस टॉपिक को कितना जानते हैं, क्या आपको इसके बारे में आइडिया है, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप जानना चाहेंगे जो आपको नहीं पता. सिमिलरली, what type of questions are there in your mind to ask. तो ये आप थोड़ी सी अपनी चीज़ें अलाइन कर लें so that you can make a clear difference between the existing knowledge as well as the knowledge discussed over here in this presentation. Then there comes the need of climate change study or research in this sector. It is very important to conduct such research studies which offer or which investigate the climate change happenings and all the phenomena which are contributing towards the global warming or
causing severe impacts on the environment and the human health, as it determines the type and location of human management ecosystems, such as agricultural farmlands, affects the weathering of rock and type of soil that forms, and the rate of soil formation affects people and society, helps to determine the quantity and quality of water available for human use, determines the severity of droughts, storms, and floods, largely determines the nature and location of biomass, major terrestrial ecosystems defined based on their plant communities. तो अब हम अगर हम पूरे एक इकोसिस्टम को स्टडी करें, हम पूरे एक इकोसिस्टम की डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनमें जाएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि द बायोमास is the major thing which is offering life to the entire living things. जो भी हमारे पास जितनी भी प्लैनेट पे जितनी भी लिविंग आइटम्स हैं वो सारी की सारी किसी न किसी तरह से इसके साथ लिंक्ड हैं, और अगर इसके डिफरेंट सेक्टर्स को किसी न किसी तरह से हम डैमेज करेंगे या वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली उसके साथ लिंक्ड स्पीशीज भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी चेक ऑन द ग्लोबल मैप कि बायोमास की क्या सिचुएशन है और किस तरह से बायोमास के ऊपर डिपेंड करती है एंटायर वर्ल्ड, तो उसमें आपको डिफरेंट उसकी डोमेन्स यहाँ पे लेजेंड में नजर आ रही होंगी, एंड वी कैन सी दैट कि देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ बायोमास व्हिच आर shown over here, and the world depend upon those categories. तो इसमें आप अगर रेन फॉरेस्ट हैं आपके पास, ये ग्रीन कलर को अगर आप देखें, सिमिलरली आपके पास टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैं इस रीजन में अगर आप आते हैं. इसी तरह से आपके पास पोलर आइस कैप्स हैं, ये वाइट कलर अगर आप देखते हैं. सिमिलरली वी हैव ओशियंस which are surrounding the earth. So weather and climate are two different terminologies. The change is same, but the main difference is the time period. What is weather and what is climate? Then the change in weather and change in climate or climate change. The answer is like the weather is the actual state of atmosphere in a period of several hours up to a few days at a given place. ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप जैसे आप वेदर फोरकास्ट भी लेते हैं नेशनल टेलीविजन पे भी, तो आप few hours, few next hours और few days की ले सकते हैं. उससे ज्यादा वो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि वो बता रहे होंगे कि next 12 years में जो अपडेट्स हैं वो ये हैं, next 15 years में ये हैं. तो weather is something which is addressing the existing situation or existing scenario in terms of weather. But the climate is a statistical description in terms of the mean and variability of relevant quantities over a period ranging from months to thousands or millions of years, IPCC accordingly. And IPCC is the topmost organization which is promoting and trying to combat the climate change in entire world. IPCC stands for Intergovernmental Panel for Climate Change. The classical period is 30 years, which are most often surface variables such as temperature, precipitation, and wind. World Meteorological Organization के accordingly ये आपके different parameters हैं जिनको आप check करते हैं कि whether the climate has changed over the years or not. तो वो कौन-कौन से parameters हैं उनको हम अगर यहाँ पे separate भी देख लें तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर की प्रोफाइल आप ले लेते हैं फॉर 30 इयर्स. विंड की ले लेते हैं आप, उसमें क्या रहा है टेम्परेचर की वजह से, उसकी वेलोसिटी क्या रही है, डायरेक्शन क्या रही है, किस तरह से विंड पार्सल्स मूव करते रहे हैं. सिमिलरली क्लाउड्स की आप नेचर और उसका बिहेवियर देखते हैं.
प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल का जो रेट है उसको आप देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें वेरिएबिलिटी आई है। ह्यूमिडिटी लेवल्स डिफरेंट रीजन्स में किस तरह से ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। सिमिलरली दी स्टॉर्म, जो नंबर ऑफ स्टॉर्म्स हैं किसी भी सर्टेन रीजन में, वो उनकी सिवियरिटी या उनकी इंटेंसिटी या उनकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज द हैपनिंग नंबर ऑफ हैपनिंग्स इन अ गिवन टाइम फ्रेम कितनी है। तो उसको आप फिर प्रोजेक्ट करते हैं टू दी बैकवर्ड इंजीनियरिंग करें आप, तो आप प्रीवियस डेटा के साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं, उसको फॉरवर्ड मॉडलिंग करते हैं उसके ऊपर, तो फिर आपको फर्दर जो एस्टिमेशंस हैं या प्रोजेक्शंस हैं वो डेवलप कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द चेंज इन क्लाइमेट इन अपकमिंग ईयर्स। जब हम इनकी बात करते हैं कि ये सारी चीजें चेंज होती हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग चेंज इन दिस कैटेगरीज, और वो ये किस तरह से, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एकदम कैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब ये तो एक नेचुरल फिनोमेना कंसीडर किया जाना चाहिए ना। विंड, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन रेट्स, ह्यूमिडिटी लेवल्स, ये सारी चीजें किस तरह से चेंज हो रही हैं। तो देयर आर few agents which are responsible for the change in these factors, and those are called as greenhouse gases. और ग्रीन हाउस गैसेस अगर आप देखें तो जो आपकी इवेपोरेशन होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी कॉज करते हैं ग्राउंड ग्रीन एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी एक्ट करते हैं। मीथेन गैस आपकी जितनी भी इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज हो रही है, दैट इज कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो दीज आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। और इनको इनकी कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई हैं कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस एंड सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसेस। तो 5 gases are primary greenhouse gases and the other one are the secondary or indirectly causing the greenhouse effect. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लें कि ग्रीन हाउस, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इटसेल्फ क्या होता है, आपने बहुत सारी जगहों पे ये फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ नर्सरीज देखा भी होगा कि वो किस तरह से हीट को कैप्चर कर रहे होते हैं और प्लांट्स को ग्रो करवा रहे होते हैं। आई थिंक it's the core area of ASAP students as well, कि ग्रीन हाउस किस तरह से ग्रीन हाउस किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। लेकिन अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर्स अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास कि आप कार को पार्क करते हैं इन एन ओपन स्पेस और पार्किंग एरिया, और इसमें जो सनलाइट है दैट इज पेनिट्रेटिंग फ्रॉम द विंड स्क्रीन टू द इनसाइड ऑफ द कार, एंड देन इट्स वेवलेंथ हैज बीन ब्रोकन और हैज बीन चेंज। जिस इंटेंसिटी के साथ ये सनलाइट से एंटर हुई थी, वो इंटेंसिटी ड्यू टू द पैसेज फ्रॉम द विंड स्क्रीन हैज बीन चेंज, and now it has become less stronger as compared to the original one, and it cannot get back out of the windscreen, which results the higher temperature inside the car. तो जब आप इसको फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड वहां पे पार्क करेंगे और एक्सपोज करेंगे टू द सनलाइट, तो सनलाइट जब इसमें एंटर हो गई तो वापस इसमें से एस्केप नहीं हो सकेगी, एंड इट वुड बी कॉजिंग दी hotter or elevated temperature inside the car. Same is happening in the global climate change as well. ग्लोबल वार्मिंग में भी यही सिनारियो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी चीज को कहते हैं। और द सेम एग्जांपल कैन बी रिप्लेस्ड और रेप्लिकेट ऑन द ग्लोबल मैप एज वेल, कि आपकी जो अर्थ है वो जितनी भी लाइट को रिसीव कर रही है लाइक दिस कार, तो वो सारी की सारी लाइट जो है वो एट द एंड ऑफ द डे उसमें से बहुत कम पोर्शन है विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, और बाकी सारी की सारी जो है वो आपकी यहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है।
उसको अगर हम यहाँ पे इस पिक्टोरियल व्यू में देखें, इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल कि आपकी सनलाइट आ रही है एंड सम ऑफ द sunlight is being reflected back to the space due to the clouds as well as due to the surface of earth. ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से जो कुछ रिफ्लेक्ट होगी वो स्पेस में जा रही है, सिमिलरली कुछ क्लाउड्स के साथ अगर इंटरेक्ट कर रही है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस स्पेस में चली जाएगी, लेकिन जो बाकी पोर्शन है वो सारे का सारा उसका अर्थ के अंदर जो जो लेयर है अर्थ के सराउंडिंग में आपकी एटमॉस्फेयर, उसमें सारी की सारी रिटेन करती जा रही है। अच्छा, जब ये इस सारे सेटअप में रिटेन करती है तो लाइक दिस कार द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इज बीइंग एलिवेटेड एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एज वेल एज क्लाइमेट चेंज। जब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 98 पे आप नॉर्मल फील कर रहे होते हैं, 98 फ़ारेनहाइट पे, एंड द मोमेंट इट गेट्स टू 99 यू स्टार्ट फीलिंग टेम्परेचर। तो सिर्फ 1 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट का वो आपके आपके जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें इतना इम्पैक्ट लेके आ रहा है, जबकि अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस देखते हैं तो सेल्सियस ग्रेड में तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 37 के सराउंडिंग में होता है, और उसमें पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड अप टिल नाउ, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 1.2 टू 1.8 या 2 अराउंड 2 कह लें आप सम रीजन्स में, जो एवरेज आपकी टेम्परेचर इंक्रीज है वो इतना सेल्सियस ग्रेड में इतना इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाएं कि ये एक एवरेज इंक्रीज है जिसको आपने सम एरियाज में वो 0.2 होगा, 0.3 होगा, कुछ एरियाज में 5 भी हो सकता है, 5 सेल्सियस बढ़ गया, कुछ एरियाज में 4 सेल्सियस बढ़ गया, 3 सेल्सियस बढ़ गया। तो ये सारे का सारा जितना भी चेंज है, ये जो रेंज बताई है ये एवरेज रेंज है। तो एवरेज रेंज भी इतनी ज्यादा है कि इससे आपका जो जितना भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा अपना बायोमास का प्रीवियसली एट अ वर्ल्ड मैप, तो उसमें आप उन सब चीजों को कंसीडर करें। आपका आपकी एग्रीकल्चरल सेटअप की सारी जितनी भी वो क्रॉप्स के राइपनिंग पीरियड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे अगर आप कॉन्टिन्यूसली उनको एलिवेटेड टेम्परेचर पे एक्सपोज रखेंगे। सिमिलरली आपके जो जितने भी एक्वा कल्चर है वो चेंज हो जाएगा। ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ में प्रॉब्लम्स होंगे कि कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसके समर्स जो हैं वो एक्सपेंड कर गए हैं, विंटर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं या कंप्रेस हो गए हैं, या उनका टाइम पीरियड कम हो गया लाइक इन पाकिस्तान, या फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स या इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस हैं, वो फिर एनवायरनमेंट में आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इट इज हैविंग अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ threatening the human health as well as the environment over the earth. ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं तो हमें उनका कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ से इंट्रूड हो रही हैं, किस तरह से हम इनको क्योंकि जब प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसकी बेसिक्स का आइडिया होगा तो हम फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिस्टेड हैं। वाटर वेपर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द ओशियंस। 79% is water and 21% is the ड्राई एरिया। तो 79% एरिया जो है वहाँ से जितना वाटर है वो सारे का सारा सन को एक्सपोज्ड है, और उससे जितनी भी इवेपोरेशन होगी तो वो सारे वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। रिवर्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल्स हैं, इनमें जितने भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट होके
आपके एनवायरनमेंट में जाएगा। अच्छा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट रेस्पायरेशन, ओशियंस एंड वोल्केनोस, ये इसकी जो बेसिक आप कह लें कि सोर्सेज हैं। सिमिलरली मीथेन है, माइनिंग ऑपरेशन, कंबस्शन, एनिमल्स, वेटलैंड्स एंड लैंडफिल साइट्स। लैंडफिल साइट्स आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाती हैं, एंड कंबस्शन जो है वो आपके ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, माइनिंग एंड कंबस्शन जो आपकी पूरी इंडस्ट्री को जो है वो शो कर रही हैं या रिप्रेजेंट कर रही हैं। Similarly, nitrous oxide and ozone are also the greenhouse gases, and these are also like having the potential to change the climate. तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस चीज को देखने के बाद हमें बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं कि अच्छा, ये तो कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो कि नेचुरल हैं, तो वो तो ओवर द इयर्स पहले से हो रहे थे, तो अब हम किस तरह से उनको रोक सकते हैं या उनकी वजह से किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इट्स इफ इट इज हैपनिंग, इट्स नेचुरल, ओवर द इयर्स हो रहा था। ठीक है, आपकी बात वैलिड है, लेकिन आप देखें कि जो वाटर वेपर की इंटेंसिटी है या उसकी जो कैपेसिटी है या उसका जो पोटेंशियल है टू चेंज द क्लाइमेट और टू रेज द टेम्परेचर और टू ऑफर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो उसमें फिर आप अंदाजा लगाएं कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके मेजर इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं वहाँ से एमिट हो रहे हैं, और वहाँ से फिर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इन्वायरमेंट, एंड द एंटायर वर्ल्ड इज इन अ कंपटीशन ऑफ प्रोडक्शन। Everybody wants maximum yield from its units and industries, and everybody wants to be rich or billionaire in a night span. और उसकी वजह से फिर ये कंपटीशन जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से फिर एमिशंस, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो एमिशंस इंक्रीज करेंगी, एमिशंस इंक्रीज करेंगी तो ऑब्वियसली फिर आपका जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो हैपन करेगा। ठीक है, तो global climate change basically climate is average weather at a given time point। मैंने पहले बताया जैसे 30 years के लिए 30 years के लिए जैसे आप इसको क्लाइमेट चेंज को स्टडी करते हैं तो फिर जाके आप उसको रिलायबल स्टडी कंसीडर करते हैं कि यस, दीज रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड द क्लाइमेट इज चेंजिंग। We expect the weather to change a lot from day to day, but we expect the climate to remain relatively constant। ये नेचुरल एक जो हमारा सेटअप है, जो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास क्लाइमेट चेंज में ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आनी चाहिए। वेदर में फ्लक्चुएशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, वो नेचुरल प्रोसेस में हम बेयर कर सकते हैं, बट दी क्लाइमेट चेंज जो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड स्टडी है, वो चेंज अगर हो जाए तो दैट्स थ्रेटनिंग। If the climate doesn't remain constant, we call it climate change, and the key question is what is the significant change, and this depends upon the underlying level of climate variability। तो अगेन वही चीज जो मैं आपसे पहले शेयर कर रहा हूँ कि अगर वो चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है, और उसको क्वांटिफाई करना, और quantification obviously we cannot handle that quantification in a physical form। We have to develop some models, and those models would be like those models would be projecting or estimating the total volume or intensity of change in terms of climate change। तो फिर वो मॉडलिंग टेक्निक्स और वो सारी की सारी जितनी आपकी रिलेटेड फील्ड्स हैं उनको आप वो स्किल्स आप अक्वायर करते हैं, एंड यू कैन obviously go through the climate modeling as well। नेचुरल फिनोमेना में मैंने आपको बता दिया कि जैसे वो वॉल्केनोस हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हैं, चेंजेस इन द सन हैं, शिफ्ट्स इन अर्थ ऑर्बिट्स हैं,
ये इसकी वजह से कुछ आपकी चेंजेस आ जाएंगी, बट दीज आर नेचुरल, और ये उस हिसाब से ही हैं कि जितना मतलब ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कॉज करेंगी। बट human activities which are defined as any activity that releases greenhouse gases into the atmosphere, तो ह्यूमन एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एमिशन है किसी की वजह से, फॉर एग्जांपल we normally go to the offices and we use different mode of transportation to reach out our offices or universities, school, colleges and universities. तो उसमें जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट कंज्यूम करेगी फ्यूल, दैट वुड बी एडिंग सम ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एनवायरनमेंट। तो आप देखें 7 बिलियन पॉपुलेशन जब मूव कर रही है और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक देखें, एक नीड है और एक ग्रीड है। तो अगर तो नीड फुलफिल करने के लिए हम रहते तो फिर मे बी इतना चेंज ना आता, बट द ग्रीड हैज चेंज द क्लाइमेट अ लॉट, और उसकी वजह से फिर आपका सारा सेटअप डिस्टर्ब हो चुका है। तो दूसरा जो अपोजिंग जो आपका अपोजिंग ग्रुप है which says that there is nothing like climate change and it's a totally natural phenomena and it has to happen and the people have to adopt this change, तो उनके लिए फिर ये आ जाता है कि एक पैटर्न पे अगर चीजें चेंज हो रही हो तो दोज आर अंडरस्टैंडेबल, बट इफ इट इज बीइंग चेंज ड्रास्टिकली तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल। वही बात कि क्लाइमेट मॉडलिंग में जब आप फिर डेटा को एनालाइज करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस ऑब्जर्व्ड इन द क्लाइमेट चेंज, और इवन पाकिस्तान में नस्ट में एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, और बहुत सारे बेशुमार आपका IST है, आप पाकिस्तान मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, आप GCST इस्लामाबाद में, GCIST ग्लोबल इम्पैक्ट स्टडी सेंटर है इस्लामाबाद में, वहाँ उनको कायद आज़म यूनिवर्सिटी को, और देर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंडक्टिंग दी, स्पार्को है हमारा, तो दे आर कंडक्टिंग दी रिसर्च इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग दीज चेंजेस, और उसमें फिर आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत आपके साथ ही करीब में आपके देयर इज डिपार्टमेंट विच इज IGIS, तो उनका जो सारा काम है उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं टू दी मॉडलिंग साइड ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एज वेल। और क्लाइमेट चेंज पे हमारी पूरी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, विच इज हेडिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ weather and climate change studies centers as well as research organizations। यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट ग्राफ्स हैं और 2 मैप्स हैं वर्ल्ड के। इनको अगर हम थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ, हम इनकी डिटेल में जाएंगे, थ्योरेटिकल डिटेल्स में भी जाएंगे नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा, बिकॉज देयर आर फ्यू लर्नर्स विच आर बेस्ट एट विजुअल लर्निंग and there are few which are theoretical learners and some are the logical learners as well as some are the social learners which want to discuss things with each other and they learn from those activities। So it's a combination of learning process, और online learning में जब हम चीजें शेयर कर रहे होते हैं तो we are talking to the mix of such groups। तो those who are good at visuals, तो उनके लिए कि आपका डेटा जो है उसमें इफ देयर इज, आप फिगर A को अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरेज कंबाइंड लैंड एंड ओशियन सरफेस टेम्परेचर अनोमली के 1850 से 2012 तक जो आपका टेम्परेचर है उसको अगर आप स्टडी करें तो वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसमें आपकी जो चेंजेस हैं एनुअल लेवल पे हैं और यहाँ पे डेकेड लेवल पे हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है
और ड्रास्टिक चेंज उसमें आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फिगर सी पे जाते हैं तो इसमें आपके पास आता है, बल्कि बिफोर गोइंग टू द सी हम वर्ल्ड मैप को डिस्कस कर लेते हैं। मेरा दिल था कि हम इन दोनों को साइड बाय साइड डिस्कस कर लेते, बट इफ इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, so you can see that this legend is showing the severity in the temperature or increase in temperature across the globe over a certain time period. तो आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त most of the areas or most of the regions I would say in the entire world are having much more temperature as compared to the previous temperatures. और अगर आप उस सेटअप को for a very long time period like 30 years or 90 years and centuries आप इसको prevail रखेंगे, तो obviously there would be a drastic change in your agricultural setup, in your living standards, and in your aquaculture setup, and all those things which are related to the temperature changes. Similarly, आप sea ice की तरफ अगर जाते हैं, these are the आपको आइडिया होगा कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कितने हैं और उनमें से कितने वाटर रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं फॉर एज ए फ्रेश वाटर सोर्स। मैं थोड़ा सा अगर उसको एलेबोरेट करूं तो आउट ऑफ 100% ऑफ द टोटल वाटर इन द वर्ल्ड जस्ट 3% आपके पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। बाकी 97% आपका जो सी वाटर है और उसमें आपकी टोटल जो जितना भी वो वाटर सेक्टर है उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते फॉर योर यूटिलिटी पर्पसेस और ड्रिंकिंग पर्पसेस until unless you invest a lot of dollars to change its nature through desalination process or very advanced water purification techniques. So that's another area which can be discussed on some other event, but एट द मोमेंट अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें या आइस एक्सटेंट की बात करें तो दीज आर लाइंग इन दोज 3% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जिनमें आपके रिवर्स आ जाते हैं, डैम्स आ जाते हैं, आपके अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है, आपका सरफेस वाटर में फिर आइस ग्लेशियर्स आ जाते हैं। तो ये सारे मिल मिला के आपको 3% बनता है टोटल जो अवेलेबिलिटी है वाटर की। और इस 3% को भी अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो 70% इज ग्राउंड वाटर और 30% आपके पास सरफेस वाटर है, और उस 30% में से भी बहुत कम है आइस ग्लेशियर्स। तो जो ग्लेशियर्स हैं ये आपके पास एक स्टोरेज है जो आप एक सर्टेन टेम्परेचर पे नेचुरली ऑकर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कर्दू में चले जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, सिमिलरली डिफरेंट रीजन्स हैं पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे आप जब इनके रीजन में जाते हैं तो वहाँ ओवरऑल टेम्परेचर सेम रहता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होते या इनकी मेल्टिंग ज़्यादा फास्टन नहीं होती, और ये एज ए रिजर्व हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर डिमांड बढ़ रही है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर बिकमिंग वाटर शॉर्टेज कंट्रीज एंड वाटर स्कर्स कंट्रीज, तो उस सारे सिनारियो में हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी कैन नॉट अफोर्ड एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर एट अ वेरी लार्ज लेवल। और अब हम यहाँ पे हमारे यहाँ तो इस टाइप की जो अवेयरनेस है मे बी वो बहुत रेयर है। आप देखें कि जब हम 1955 या 1950s की बात करते हैं तो एवरी ह्यूमन बॉडी इन पाकिस्तान हैड द अवेलेबिलिटी ऑफ what fresh water in terms of 5500 cubic meters annually। ठीक है, हर बंदे को 5500 क्यूबिक मीटर्स एनुअली अवेलेबल था। वो 365 डेज में वो 5500 क्यूबिक मीटर्स, एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं, तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें 5500 को, तो दोज वुड बी दी लीटर्स इन एज ए टोटल अवेलेबिलिटी इन एन एंटायर ईयर। तो ये अवेलेबिलिटी थी, और उसके बाद फिर करंट जो है हमारी 5500 से ड्रॉप होके 600 तक आ चुकी है।
600 कोई रिपोर्ट करते हैं, कोई 700, 800, 900, बट इट इज बिलो 1000 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा पर ईयर। तो आप अंदाजा लगाएं कि ड्यूरिंग दी 70 ईयर्स हमने बिल्कुल कुछ इसके ऊपर काम नहीं किया, और हम जो सारा हमारा सेटअप था उसको हम ड्रॉप डाउन कर चुके हैं। और इसमें भी शुक्र करें कि कुछ हमने डैम्स, तो कोई 5-7 डैम्स बना लिए जो लार्जर डैम से या बड़े डैम से हमारे, और उनकी वजह से हमारा कुछ ना कुछ जो वाटर, इवन इफ इट इज गेटिंग मेल्टेड, तो उसको हम स्टोर तो कर लेते हैं, but most of the water content is being discharged into that 70% which is salty water and not usable or not consumable by the human beings। और उसमें हम अपना fresh water जो melt होके in the form of floods आता है, उसको भी हम कहते हैं कि साइड से होके आगे निकल जाओ, सी में चले जाओ। तो ये जो आपको स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये डिक्रीज है आपके टोटल जो आइस ग्लेशियर्स हैं उनके अंदर जो डिक्रीज आ रहा है ड्यू टू दी राइज इन टेम्परेचर, और उन रीजन्स का टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे उनके ग्लेशियर्स ने सस्टेन करना था, अब उसको अगर आपने 1 डिग्री 2 डिग्री इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी वजह से जो उसका जितना कंटेंट वहां से मेल्ट होना है वो मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके फ्लड्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। लिंक करें आप इन चीजों को कि फ्लड ज्यादा आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, मतलब फ्लड आ जाए तो इसका क्लाइमेट चेंज के साथ क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक ये बनता है कि फिर आपके ग्लेशियर्स जो हैं उनकी मेल्टिंग जो है वो आपने इंक्रीज कर दी है, एंड नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज बीइंग एडेड टू द स्ट्रीम्स, एंड द स्ट्रीम्स आर नॉट एबल टू बेयर दैट वाटर, एंड दैट अपीयर्स एज फ्लड वाटर। तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, आपके पास एडिशनल स्टोरेज स्पेसेस भी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो आप उसको कहते हैं कि एक तो पूरे मुल्क में से एक हमारी है ना स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वाटरशेड ही पाकिस्तान का टोटल ऐसा है कि एक साइड से नॉर्दर्न एरिया से पानी जो है वो सारा कराची की तरफ मूव करता है पूरे कंट्री में से गुजर के। तो सारी की सारी वो जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, वेजिटेशन का लॉस होता है, आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, आपके बिजनेस आवर्स का लॉस होता है, आपकी इंडस्ट्रियल सेटअप का लॉस होता है, वो सारे का सारा फ्लड की वजह से जितने भी लॉसेज होते हैं वो सारे हम हमें हिट बैक कर रहे होते हैं, बेसिकली जो हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आप sorry, I'm so sorry sir for interrupting, लेकिन सर मीटिंग का टाइम was 4:40 मैंने रखा हुआ था, तो सिर्फ ये 4:40 पे एंड हो जाएगी ये वाली मीटिंग। All right, I am going to conclude it. हमने डिटेल में यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, तो I would be concluding it in 40 minutes इंशाल्लाह। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाइस वर्सा, जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वाटर क्वांटिटी बढ़ रही है, तो वो सारी की सारी पूरी दुनिया में यही हो रहा है। अगर तो आपके सी लेवल का जो है वो सी लेवल जो है वो राइज कर रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो मालदीव्स जो है उसको पूरा का पूरा कंट्री कहीं और शिफ्ट करने के चक्कर में है। बांग्लादेश बहुत ज्यादा थ्रेट में है। कराची को आप देखेंगे कितने फीट वो नीचे है सी लेवल से। इसी तरह भूटान एंड बाकी जो जितने भी कंट्रीज हैं, ये तो साउथ एशिया हो गया, और बाकी पूरी अक्रॉस द ग्लोब आप देखें तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो सी लेवल राइज से बहुत ज्यादा थ्रेटन है, और उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको अगर सेफ रखना है, ह्यूमन लाइफ को सेव करना, तो हमें फिर उसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑब्जर्व चेंज इन एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द लैंड, तो ये चेंजेस हैं जो आप देख सकते हैं कि इंक्रीज कर गए हैं। ये ब्लू कलर आपका चेंजेस को शो कर रहा है कि ये इंक्रीज कर गई हैं। तो प्रेसिपिटेशन बेसिकली रेनफॉल भी आपकी इंक्रीज कर जाती है। ये मीन एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि इंक्रीज है। वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कि 288 थी तो अब 382 पे हम चल रहे हैं, 800 थी तो 1700 में चले गए हैं। तो इसी तरह से हमने इवन 0 थी तो कुछ हमने खुद से इतनी ज्यादा ऐड कर दी हैं ये चीजें। और ये आपका जो टोटल एनुअल एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं, तो उन सारी गैसेस को आपने लेजेंड में शो करके यहाँ पे उनके इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है, कोई भी डिक्रीज नहीं हो रही, सारी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही जा रही हैं।
All of these things have been discussed. We must go to the final slides. Sea level, मैंने बताया कि over the time it has been increased. ये हाँ जी, ये डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं जो आपके इंडिकेटर्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हो रही है या नहीं. एयर टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर ओवर ओशियंस एंड सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सी आइस डिक्रीज कर रही है, ग्लेशियर्स डिक्रीज कर रहे हैं, स्नो कवर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर ओवर द लैंड इंक्रीज कर रहा है. तो ये सारी चीजें विटनेस हैं कि क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग एंड इट इज डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट and it is causing severe impacts over the life of the human health. इसके साथ कुछ मिटिगेशन मेजर्स या अडेप्टेशन मेजर्स होते हैं, वो किसी और इवेंट पे हम डिस्कस करेंगे. आई हैड दोज स्लाइड्स विद मी एंड due to the shortage of time we won't be able to discuss anymore. So these are the basic impacts of the global climate change which are being faced by the earth. With that, I would conclude the session, and I am really thankful to the admin and organizers of this event that they have invited me as guest speaker and provided me with an opportunity to speak with you guys. Thank you so much. Thank you so much, sir.